پاکستان چین نہایت منفرد تعلقات، اسٹریٹجک کوارڈینیشن اور اعلیٰ ترین سطح پر باہمی اعتماد کا رشتہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ، دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ ML1 منصوبے پر جلد عمل درآمد اور کراچی سرکلر ریلوے پر پیش رفت پر اتفاق۔ برآمدی مسابقت بڑھانے کے لیے صنعت، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون بہتر بنایا جائے گا۔ رواں سال چین کے لیے پاکستانی برآمدات $4 ارب سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ چین کے سفیر رونگ رونگ کا خصوصی مضمون۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، شرکاء کو قومی سلامتی اور ملک کو درپیش چیلنجز سے متعلق بریفنگ۔ ارکان پارلیمنٹ، سرکاری افسران، سفارتکاروں اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ صدر مملکت کی ملکی قیادت کے لیے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپس کے انعقاد پر NDU کی تعریف۔ شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملتان گیریجن کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ اسٹرائک فارمیشنز کی مادر وطن کی خدمت میں غیر معمولی پیشہ ورانہ قابلیت اور خدمات قابل ستائش ہیں۔ ڈیلی میل عدالت میں الزامات کو تاحال ثابت نہیں کر سکا۔ 1.5 سال ہیلی بہانوں سے کیس میں تاخیر کی گئی۔ ڈیلی میل کے شہباز شریف پر عائد کردہ الزامات کی سماعت کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ جیت چکے ہیں۔ مختصر جواب پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ شدید متاثرہ ملکوں کے ساتھ ماحولیاتی انصاف کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پبلک اور پرائیویٹ فائنینسنگ کا نظام تشکیل دیا جانا چاہیے۔ لیونگ انڈس منصوبے سے ماحولیاتی نظام کی بحالی میں مدد ملے گی۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا شرم الشیخ میں ایشیا پیسفک ریجن میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق تقریب سے خطاب۔ جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں 3 نئے ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اطہر من اللہ سے حلف لیا۔ عدالت عظمیٰ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی۔ اسلام آباد میں ایڈوانس میٹرنگ کے لیے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح۔ حکومت قابل تجدید سستی بجلی کی پیداوار کے منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے۔ جدید میٹروں کی تنصیب سے لائن لاسز اور اوور بلنگ کی شکایات کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کا دائرہ ملک تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر۔ بحرین ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی گھنگرج، شاہینوں کا شاندار ایروبیٹکس کا مظاہرہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سمیت مختلف ممالک کے وفود اور اعلیٰ فوجی حکام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر احتجاجی کیمپ کا انعقاد۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم اور امتیازی قوانین کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی۔ اقوام متحدہ سے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی، شبیہ میں مزید ایک نوجوان شہید۔ قابض فوج کا مختلف علاقوں میں پرتشدد آپریشن، بچوں اور خواتین سمیت لوگوں کو ہراساں کیا، گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کے ماڈل کی پیروی کر رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار۔ بھارتی سپریم کورٹ نے راجیو گاندھی قتل کے تمام مجرموں کو رہا کر دیا۔ عدالت نے خاتون سمیت 6 مجرموں کو 31 سال بعد رہا کرنے کا حکم دیا۔ مجرموں کو جیل میں بہتر طرز عمل کی وجہ سے رہا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ۔ یوکرین کی فورسز کا 40 سے زیادہ قصبے روس سے واگزار کرانے کا دعویٰ۔ علاقے سے روسی فوج کے مکمل انخلا میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ یوکرین کی پیش قدمی کی وجہ سے انخلا کا مشکل فیصلہ کیا۔ روسی وزارت دفاع۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और आला तरीन सतह पर बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हेल्थ, इंडस्ट्री, डिजिटल और ग्रीन कॉरिडोर जैसे तस्वुरात सी पैक का अहम हिस्सा होंगे। चीन के सफीर नोंग नोंग ने खुसूसी मजमून में तहरीर किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीनी क़यादत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से देखती है। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद असर। पाकिस्तान में अवामी जमहूरिया चीन के सफीर नोंग रोंग ने अपने मजमून में लिखा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग, वजीर आजम ली कीचियांग और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से अहम मुलाकातें हुई। वजीर आजम का ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात की इनफरादियत और चीन की मजमूई सफारतकारी में पाकिस्तान की अहमियत का अक्कास है। उन्होंने लिखा कि दोनों मुल्कों ने ई कॉमर्स, डिजिटल इकानमी, ज़रई बरामदात, माली ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड रिलीफ और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। चीनी सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की इनफरादियत बाहमी ताउन में मुज़मर है। उन्होंने लिखा कि सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात में एक बार फिर वाज़े किया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक और तवीलुल मुद्दती नुक्ता नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और तारीख बदल रही है और चीन इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसियों से आलमी हालात को अदम इस्तेहकाम से महफूज कर रहा है। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि चीन मुसलसल तरक्की के जरिए पाकिस्तान और दीगर दुनिया को तरक्की के मौके फराहम करने की अपनी पॉलिसी जारी रखेगा। ताइवान और सिंकियांग से मुतल्लिक अमूर पर पाकिस्तान ने चीन की भरपूर हमायत की है। इसी तरह चीन भी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सिक्योरिटी और समाजी इक्तसादी तरक्की और खुशहाली में ताउन कर रहा है। नोंग रोंग ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती करीबी हम आहंगी दो तरफा और बैनुल अक़वामी सतह से बढ़कर कसीरुल जहती हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड के तहत सी पैक के 25 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी के 47 मंसूबों पर काम हुआ है। 27 अक्टूबर को JCC इजलास में ML1 मंसूबे पर जल्द अमल दरामद और कराची सर्कुलर रेलवे पर पेशरफ्त पर भी इत्तफाक किया गया। सी पैक के अगले मरहले में हम पाकिस्तान में सनतों को फरोग और इसकी बरामदी मुसाबकत को बढ़ाने के लिए सनत, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को बेहतर बनाएंगे। चीनी सफीर ने कहा कि सेहत की राहदारी, सनती राहदारी, डिजिटल राहदारी और ग्रीन कॉरिडोर जैसे तस्वुरात सी पैक की आला मियार तरक्की का अहम हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि रवां साल चीन को पाकिस्तान की बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावज़ होने की तवक्को है। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान की तरफ से आला मियार की ग़िज़ाई और ज़री मसनूआत के अपने यहाँ फरोख्त का भी खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि चीन के अवाम को अब तक याद है कि 2008 में वेंचुआन में जल्जले के बाद पाकिस्तान ने अपने पास मौजूद तमाम खेमे उनको भिजवा दिए थे। पाकिस्तान में रवां साल गैर मामूली सैलाब के बाद चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। इस माली और मादी इमदाद का मजमूई हुजम 660 मिलियन युआन तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान चीन ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के बाद तामीर नौ के लिए 500 मिलियन मजीद युआन की हंगामी इमदाद का भी ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान के लिए चीन की मजमूई इमदाद 36 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान चीन के दरमियान दिफाई, सकाफती, तिब और दीगर शोबों में ताउन रोज बरोज फरोग पा रहा है। उन्होंने लिखा कि हमारे दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए मैं ज्यादा पुरइतमाद हूँ और हमारी दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए तवक्कुआत बुलंद तर हैं। उनका कहना था कि नए दौर की मुश्तरका काविशें पाक चीन कम्युनिटी के फरोग और हमारी सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी को नई कुव्वत बख्शेगी। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौमी सलामती से मुतालिक वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। 5 हफ्ते पर मुश्तमिल इस वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरों, सिफारतकारों और आला हुकाम ने शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उन्होंने कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर वर्कशॉप के निकात के लिए NDU के किरदार को सराहा। वर्कशॉप का मकसद सिक्योरिटी माहौल को समझना, मुख्तलिफ जहतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पैदा करना था। वर्कशॉप में कौमी सलामती और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का भी इहाता किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया और अफसरों और जवानों से खिताब किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस के जवानों से भी मुलाकात की और उनकी गैर मामूली पेशा वाराना काबिलियत और खिदमात को सराहा। मुल्तान गैरिजन आमद पर कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बरतानवी अदालत में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डेली मेल के खिलाफ केस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि डेली मेल ने 1.5 साल हिले बहाने से केस को ताख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं और इन दरखास्तों पर मुकदमे की लागत अदा की जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डेली मेल के शहबाज शरीफ पर आयद करदा इल्जामात की आइंदा समाअत 13 दिसंबर को होगी। शहबाज शरीफ की जानिब से मुकदमे में मुख्तसर जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका है। हत्या के इज्जत के मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। उन्होंने कहा कि डेली मेल अदालत में अपने इल्जामात को ताहाल साबित नहीं कर सका, उसे अब कानून का सामना करना पड़ेगा। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि आबो हवा को हंगामी सूरत हाल से महफूज रखने के लिए ठोस बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। मुस्तकबिल में माहौलियाती तबाही से निपटने के लिए माहौलियाती माली इत्तेहाद अहमियत का हामिल होगा। शर्म अल शेख में एशिया पैसिफिक रीजन में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शदीद मुतासरा मुल्कों के साथ माहौलियाती इंसाफ करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मुतअद्दिद माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। द लिविंग इंडस मंसूबे से माहौलियाती निज़ाम की बहाली, दरिया और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। विफाकी वज़ीर ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग का निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए। शर्म अल शेख में कॉन्फ्रेंस में होने वाले पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर तिजारत सैयद अवीद कमर ने कहा कि आबी ज़खायर को मौसमियाती कटाव से बचाना और मौजूदा ज़राई तरीकों को तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज करना होगी। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही की वजह से हमें तकलीफ का एहसास है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमें खुद को कुदरती निज़ाम के मुताबिक ढालना होगा। सैयद नवीद कमर ने ज़राई शोबे में जद्दत और सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में पेश किया। मकामी और आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म की मसरूफियात और उनके कलीदी खिताब को खुसूसी कवरेज दी। तफसील बताएंगे रियाज बरकी। मिस्र के मुमताज़ अखबार इजिप्शियन गज़ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और दीगर मसरूफियात के बायस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस COP27 में तवज्जो का मरकज बने रहे। मौकर अरबी रोजनामे शुरूक न्यूज़ ने लिखा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुद्दलिल खिताब से आलमी बिरादरी इस बात पर कायल हो गई कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों बिलखुसूस पाकिस्तान की मदद वक्त की जरूरत है। खिते के एक और बड़े अखबार अल बिलाद ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफियात और खिताब को खुसूसी कवरेज दी है। मुमताज़ अरब रोजनामे अल दस्तूर ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में वज़ीर आज़म की शिरकत और उनके खिताब को मुकम्मल तौर पर नशर किया है। मिस्र के एक बड़े जरीदे अल वतन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस की तमाम सरगर्मियों में शिरकत को सफ़े अव्वल पर कवरेज दी है। खिते के एक और मुमताज़ जरीदे अल अखबार ने भी वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से खुसूसी मज़ामीन शाये किए हैं। दारुल हिलाल ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत और खिताब को अपनी सुर्खियों की जीनत बनाया है। पाकिस्तान के मखसूस मौसमी हालात के बायस वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे और उनके दौरे को न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी मीडिया में भी भरपूर कवरेज दी गई। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शर्म अल शेख। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि इक्तिसादी राहदारी इलाकाई तरक्की का मंसूबा है। मुस्तकबिल में इस अहम मंसूबे के तहत ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद में चीन के तिब्बी शोबे से वाबस्ता वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करना चाहते हैं। विफाकी वजीर ने वफ्द को सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस के बारे में भी आगाह किया।
नाज़रीन, जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां संभाल ली। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। तफसील बताएंगे मोहम्मद मसर अब्बास। ऐवान सदर इस्लामाबाद में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आमिर फारूक से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस आमिर फारूक सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहैसियत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छठे चीफ जस्टिस होंगे। वो 2015 में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। वकला तंजीमों के अहदेदारों और वकला का कहना है कि जस्टिस आमिर फारूक ने हमेशा कानून और आइन के मुताबिक फैसले किए और वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट दी हैं, अच्छे फैसले किए हैं और ये बहुत खुश आइंद है। जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो माजी है वो इस अमर का बेयन सबूत है कि उन्होंने हर मरहला पर एक बेहतरीन अंदाज में अपने कारहाय मनसबी को सर अंजाम दिया। बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने 1988 में एचिसन कॉलेज से हायर सीनियर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट हासिल किया। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद बारट लॉ की डिग्री हासिल की और 1994 में पाकिस्तान वापस आकर लाहौर हाई कोर्ट और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। वो 2015 में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने बतौर जज ओहदा संभालने के बाद सिंगल बेंच में 10,000 से ज्यादा केसेस निपटाए, जबकि डिवीजन बेंच में साथी जजेस के हमरा भी 5,000 केसेस के फैसले सुनाए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्लाह से हलफ लिया। तकरीब में अदालत उज़्मा के जज साहिबान और वकला ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से कबल जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। इन 3 जजेस के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब 15 हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान रास्तों की बंदिश से मुतालिक कमिश्नर रावलपिंडी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कमिश्नर रावलपिंडी को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि रास्ता बंद करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया ने क्या कार्रवाई की। आप लोग दफातर में बैठे रहे और आवाम सड़कों पर ख्वार होते रहे। मामले की आइंदा समाअत 16 नवंबर को होगी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़रिए एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। रैली में मिली नगमों और कौमी तरानों से फजा गूंज उठी। जिला शहीद बेनज़ीराबाद में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। शहरियों का कहना था कि वो अपनी पाक अफवाज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बिला वजह मुखालिफत बंद की जाए। बदीन में पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिनमें पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है और हम किसी को भी ये रेड लाइन उबर करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। मलकवाल में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। किसान बोर्ड के जिले सदर और दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज इस मुल्क की मुहाफिज है। बाज़ सियासी अनासिर की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। बलोचिस्तान भर में भी पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी की शदीद मजम्मत की जा रही है। दक्की के शादोज़ई और तरीन कबाइल ने भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहरा किया। उन्होंने पाक फौज की हिमायत और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुहिम जुई नाकाबिले बर्दाश्त है। जोब में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज पर बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने कहा कि जाती मुफाद के लिए पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी से इज्तनाब किया जाए। हब में रैली के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा काबिल मजम्मत है। कुछ सियासी जमातें अपने मुफाद की खातिर अवाम को गुमराह करने के लिए पाक फौज को बदनाम कर रही हैं। वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगी। लोधरा में सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से एक रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने कहा कि फौज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज और मुल्क के दिफा की जामिन है। मैं समझता हूं कि अगर हमारी पाक फौज मजबूत है तो हम मजबूत हैं।
اگر پاک فوج مضبوط ہے تو ہماری نسلیں مضبوط ہوں گی، ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی۔ اس وقت ہم تمام سول سوسائٹی ایک پیج پر اکٹھے ہیں پاک فوج کی تائید میں۔ جب بھی کوئی ناگہانی آفات آئی، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں، جب بھی ہم لوگ تنگ ہوئے، جب بھی انایزی ہوئے، تو پاک فوج نے ہمیں سہارا دیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی جو اس وقت پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے یا ان پر بلا جواز تنقید کی جا رہی ہے، یہ لوگ اپنا مطلب چاہتے ہیں۔ ناظرین، دفاعی میدان میں پاکستان کے شاہکار JF-17 تھنڈر نے بحرین ایئر شو میں سما باندھ دیا۔ JF-17 لڑاکا طیارہ نمائش میں خصوصی توجہ کا مرکز رہا۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ایئر شو میں پاکستان کی شرکت خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ ایئر چیف کے مختلف ملکوں کے مندوبین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائی کے دوران مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے نوجوان کو ضلع شوپیاں کے علاقے کاپرن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں کی جانب سے شوپیاں، کپواڑہ، بارہمولہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، پلوامہ، پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں پرتشدد آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران بچوں اور خواتین سمیت لوگوں کو سخت ہراساں کیا اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور ماہرین نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین پر اپنے غیر قانونی قبضے کے ہتھ کنڈوں کو مربوط بنانے کے لیے نت نئی سازشوں میں مصروف ہیں۔ فسطائی بھارتی حکومت کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے اسرائیلی ماڈل کے تحت اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا مقبوضہ جموں کشمیر میں نافذ کردہ ڈومیسائل کا نیا قانون اسرائیلی نو آبادیاتی منصوبے کا عکاس ہے۔ قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو مسلسل گھر میں نظر بند رکھا اور انہیں آج ایک مرتبہ پھر جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا۔ بھارتی پولیس نے دیہی بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کے 20 ملازمین کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب جموں کے نزدیک احتجاج کر رہے تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو لندن سے روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن میں موجود تھے اور اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف ان کو دعاؤں میں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ لندن میں تھے، اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور یہ کچھ مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے ان کو دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کے ذریعے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور ٹویٹر پر، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ہمراہ پاکستان کے لیے رخصت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق یونیورسل پیریوڈک ریویو کا 41واں اجلاس جاری ہے۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی کہ وہ بھارت میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ گردوارہ سری پنجا صاحب حسن ابدال میں سکھوں کی 3 روزہ مذہبی تقریبات ختم ہو گئیں۔ اختتامی تقریب میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے شرکت کی۔ متروکہ وقف بورڈ کی جانب سے یاتریوں کے لیے رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل، جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ سکھ یاتری ڈیرہ گردوارہ لاہور میں 1 روزہ قیام کے بعد اتوار کو کرتارپور روانہ ہوں گے۔
सिंध के जिला जामशोरों में तारीखी मकामात सयाहों के मुंतजिर हैं। तारीखी और मुनफरद बनावट के हामिल रनीकोट कला देखने वालों के अपने जहर में मुब्तला कर देता है। दीवार चीन की तर्ज पर बनाए गए किले को हालिया बारिशों से शदीद नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, इसी हवाले से शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिला जामशोरों में सन के करीब खीरथर पहाड़ी सिलसिले में कदीम और तारीखी किला रनीकोट अपनी मुनफरिद और हैरत अंगेज बनावट में आज भी कायम है। कई साल पहले 32 किलोमीटर तवील पहाड़ी सिलसिले पर कायम इस किले को दीवार चीन की तर्ज पर बनाया गया, जिसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। रनीकोट किले में 3 छोटे किले मेरीकोट, शेरगढ़ और मोहनकोट भी कायम हैं। रनीकोट किले की दीवार की चौड़ाई 12 फीट है और तवील दीवार पर मुख्तलिफ मकामात पर मोर्चे भी बनाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये किला दिफाई एतबार से बनाया गया। हालिया बारिशों से किले की दीवारों और शाही दरवाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। वसी रकबे पर कायम किले को महफूज बनाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। पहले भी गिरते रहे हैं तो उसको हम बहाल करते रहे हैं, उसकी कंजर्वेशन करके। इस मरतबा भी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो एट ए टाइम पे 5 जगहों पे ये बड़े पोर्शंस गिर गए हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उसको हम कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका जितनी भी नुकसान हुआ है उसको कंजर्वेशन करके उसको हम कंप्लीट करके इंशाल्लाह पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। तारिकदान कहते हैं कि ये किला ईरान, अफगानिस्तान या फिर यूनान से आए बादशाहों ने 945 ईस्वी में तामीर कराया। ताहम बाद में तालपुर हुक्मरानों ने इस किले को इस्तेमाल किया और चंद मजीद दरवाजे और बुर्ज भी कायम किए। पुराना किला है, तारीखी हिसाब से अच्छा है और इसकी मुरम्मत होनी चाहिए कि ऊपर चढ़ के जाएं देखें। अभी ये ऊपर चढ़ने की जगह ही नहीं है। ये जो हालिया बरसात हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। कुदरती नज़ारे यहाँ पे आबशार भी है यहाँ मौजूद, और दूसरा लोगों को चाहिए यहाँ के विजिट करें। रनीकोट किले की तामीर में कीमती पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और बड़े पहाड़ी सिलसिले पर दीवार बनाई गई जो कि कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। इंडस हाईवे सन शहर से 30 किलोमीटर दूर रनीकोट की सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार है। मुश्किल और दुश्वार रास्ते और सहूलतों की फुकदान की वजह से ये किला दुनिया की नजरों से ओझल है। इस तारीखी किले में कुदरती आबशार और आबी गुजरगाहों के खूबसूरत मनाजिर भी मौजूद हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का बायस हैं। हालिया बारिशों के बाद रनीकोट किले को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी बहाली के लिए फौरी इकदाम करने की जरूरत है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रनीकोट किला, जामशोरो। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नए मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। मुल्क में ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स के एरियाज में जदीद मीटर्स लगाए जाएंगे। नए निज़ाम से लाइन लॉसेज में भी कमी आएगी। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि AMI मीटरिंग मंसूबे के तहत नए जदीद मीटरों की तनसीब से लाइन लॉसेज में कमी, बिजली चोरी की रोकथाम और ओवर बिलिंग जैसी शिकायत का खात्मा होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि AMI मीटरिंग मंसूबे का आगाज आइस्को से कर रहे हैं, जिसके बाद इसका दायरा कार मुल्क भर में बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद मीटरों की तनसीब के साथ सूरज और दीगर जराए से सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। AMI सिर्फ मीटर जदीद नहीं है, उस मीटर की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर उसका एक सेंटर होगा जिससे वो 24 घंटे मॉनिटर हो रहा हो। तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, बल्क बायर्स, ज़रूरी शोबे में भी बड़े सारिफ हैं, उनको भी ऐड किया है। और इसके साथ ही चूंकि ये सिर्फ AMI का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के आगाज में शमसी तवानाई का एक बहुत बड़ा कदम हमारी हुकूमत ने उसका ऐलान किया था। उसकी पहली बिडिंग जो है वो इंशाल्लाह होने जा रही है 600 मेगावाट की। उससे भी महंगे बिजली बनाने के कारखाने हैं, उसकी जगह इस वक्त दुनिया की सस्ती तरीन बिजली शमसी तवानाई की है, उसका आगाज होगा। आइस्को के CEO डॉक्टर अमजद खान और राजा आसिम ने कहा कि AMI मीटरिंग मंसूबा चेकिंग के निज़ाम में इंसानी मुदाखलत खत्म कर देगा। सार्फिन योमिया, हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर अपने बिजली के बिलों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इससे पहले वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने आइस्को हेडक्वार्टर्स में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह भी किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे, साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर।
From the house of Eagle Star and Rehbar. नाज़रीन, सेनेटर आजम स्वाति से मंसूब मुबैना वीडियो से मुतालिक सेनेट की खुसूसी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ारत दाखिला और FIA हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि मुबैना वीडियो जाली है। कन्वीनर अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने इस शर्मनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ सामने लाने और जिम्मेदारों को बेनकाब करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि हुकूमत अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासर इलाकों में बड़ी हद तक बिजली बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महदूद वसाइल के साथ मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली को मुमकिन बनाया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर आसिया अजीम ने बताया कि वज़ारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को PTI लॉन्ग मार्च के बाइस आवाम को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए मरासला भेजा है। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माह सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.13 फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने ₹4.62 फी यूनिट कमी की दरखास्त की थी। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹4.89 फी यूनिट कमी के साथ चार्ज किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइफलाइन सार्फिन, 300 यूनिट्स तक के घरेलू सार्फिन, ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मोहम्मद अवैस सिद्दीकी से पाकिस्तान में किर्गिज़स्तान के सफ़ीर ओलनबिक तत्यूक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद अवैस सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के अहदेदारों और सोशल मीडिया टीम से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि माशरे में इखलाकी गिरावट और दूसरों की पगड़ियां उछालने का मनफी रुझान अफसोसनाक है। नौजवान सोशल मीडिया पर इखलाकी इक़दार को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने माशरे में मुनाफरत के बीज बोए हैं। इस तक़सीम की बेखुनी के लिए नौजवानों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर अवामी खिदमत है। शेखुपुरा के इलाके मंसूराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क में तरक्याती अमल आगे बढ़ा, इमरानी फितने ने रुकावटें डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के दरमियान होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बलोच तलबा की शिकायत के इजाले के लिए बनाए गए कमीशन का 7वां इजलास रुकने कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा को हिरासत करने, जबरी गुमशुदगियां और नस्ली प्रोफाइलिंग पर गौर किया गया और इस चैलेंज से निपटने के तरीके तलाश करने पर जोर दिया गया। कमीशन ने तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते बलोचिस्तान का दौरा करने का फैसला किया है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान में शाहराहों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 4 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली जोब मीर अली खेल शाहराह से अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अली खान मंदुखेल। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की शाहराहों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। जोब मिराली खेल शाहराह जो कि 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाने वाली एक अहम शाहराह है। ये शाहराह वफाकी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो की बदौलत 4.5 अरब की खतीर लागत से काम मुकम्मल हो गया है। ये शाहराह 2 सूबों को आपस में मिलाता है। जो रोब डिया खान शाहराह था उसका जो फासला था वो बहुत तवील था, लेकिन ये इस शाहराह की जो फासला है ये बहुत कम है और ये अवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो मिराल खेल रोड की तामील से हमें फ़ायदा है, हम वफाकी हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। इस शाहराह से जोब और शेरानी के लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी एजाज जाखरानी की जमानत कबल गिरफ्तारी दरखास्त की समाअत के दौरान नैब से इस्तफसार किया कि रेफरेंस दायर होने के बाद चेयरमैन नैब कानून की किस शिक के तहत मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कह सकते हैं। 4 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि मुलजिम का मौक़िफ़ है कि इसने ओहदे पर रहते हुए कोई रकम वसूल नहीं की। जस्टिस अतर मुनिल्ला ने कहा कि रेफरेंस दायर होने के बाद चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप एंड फॉरेन कंट्रीज के सदर लेन सोंग थियान ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और सी पैक के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सी पैक मंसूबों की बहाली के लिए पुरज़्म है। चीन के ताउन से थर में 1360 मेगावाट का कोयले की मदद से बिजली घर के मंसूबे पर आइंदा साल से काम का आगाज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि तालीम और तहकीक पर तवज्जो देकर ही हम बदलते हुए आलमी तकाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब ने आखिर में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में डिग्री और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का एक और इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत ड्रैब के रेगुलेटरी दायरा इख्तियार में आने वाली मखसूस मसनूआत के लिए तजवीज़ करदा कागजात इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने, प्रोसेसिंग और लाइसेंस का इजरा और दरामदशुदा मसनूआत NOC और दीगर सर्टिफिकेट्स फराहम किए जा सकेंगे। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में डेंगू के मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जनवरी से अब तक 7 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा। रवां साल जनूबी पंजाब भर में 1500 से जायद अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खित्ते के मुख्तलिफ अस्पतालों में तशखीस होने वाले डेंगू केसेस की तादाद 1500 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केसेस मुल्तान में रिकॉर्ड हुए। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इजला में डेंगू में मुब्तला मुतअद्दिद अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। 5 से 10 मरीज रोजाना की बुनियाद पर हैं। मोस्टली वो लोग हैं जो सिंध में ट्रैवलिंग करते हैं या लाहौर वगैरह में इस साइड के एरियाज में ट्रैवलिंग करके, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम ये बहुत ज़्यादा है डेंगू। जो हमारे पास इस टाइम जो शर्रा है वो 4 to 10 है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ये बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्चित अस्पताल मुल्तान में 723 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। इस वक्त भी अस्पताल में डेंगू में मुब्तला 8 अफराद जेर इलाज हैं। मामले की संजीदगी के पेश नजर अस्पताल में 102 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा वार्ड मुख्तस किया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे का अमल भी जारी है। डेंगू वायरस से बचाव में हुकूमत के साथ साथ शहरियों का भी इंतहाई अहम किरदार है। मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल और अपने माहौल को साफ सुथरा रख कर ही इस वायरस से बचा जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। इजलास में इंस्टीट्यूट के लिए बैरून मुल्क से माहिर डॉक्टर्स की खिदमात मुस्तार लेने की हिदायत और अमराज़ कल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए खुसूसी शोबा कायम करने का भी हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने अस्पताल में मरीजों के अजीज़ व अकारिब के लिए वेटिंग एरियाज और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करने की भी हिदायत की। और नाज़रीन, कोयटा में फलों का शहंशाह कंधारी अनार ढेरों ढेर जमा है। रवा साल मौसमी तब्दीली के बायस अनार की कम पैदावार के बावजूद मकामी सतह पर अनार की सप्लाई में खातिर खा इजाफा देखने में आया है। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। आजकल कोयटा की सड़कों पर अनार की बहार अपने उरूज पर है। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से दरामद होने वाले कंधारी अनार की सौगात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर में बेहद पसंद की जाती है। अनार का फल विटामिन C, आयरन और कैल्शियम का मुकम्मल जरिया और बहुत सी बीमारियों के लिए अक्सीर है। कंधारी अनार बहुत मशहूर है और कंधार से जो अनार आता है यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। कागजी अनार जो है वो बहुत अच्छा अनार है, खासकर जो है कंधार का वो सारा कागजी अनार होता है। यार पाकिस्तान में मशहूर हो गया कंधारी अनार है। अनार एक बहुत ज़बरदस्त फल है, इसको हम बहुत पसंद करते हैं। अनार की मुख्तलिफ इक़साम में बेदाना, सिंदूरा और कागजी अनार लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। खुश जायका, खुश रंग, रसीले मीठे अनार बहुत से फ़ायदे रखते हैं। इसका अंदाज़ा एक अनार 100 बीमार की कहावत से बखूबी लगाया जा सकता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का दौरा किया और जामिया के मुख्तलिफ शोबे देखे। हुकाम ने वफ़द को यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा के लिए बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप्स के हवाले से आगाही सेमिनार भी हुआ, जिसमें बैरून ममालिक खुसूसन मलेशिया में वज़ाइफ के मौक़ों से आगाह किया गया।
नाज़रीन, लाहौर में दूसरा सालाना किताब मेला और एजुकेशन एक्सपो जारी है। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से कम नरखों पर किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है जो इस पर शऊर के नए दरीचे खोलने के साथ साथ उसे बदलते तकाज़ों से आहंग करता है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़रिए तमाम किताब मेले का मकसद नौजवान नस्ल और किताब के दरमियान रिश्ता मजबूत करना और इल्मी दोस्ती को फ़रोग देना है। किताब मेले में मुल्क के नामवर पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए, जहां नौजवानों का गैर मामूली रश उनकी किताब बीनी में दिलचस्पी का सबूत है। एक बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन एक्सपो इनका इनकाद किया है, जिसमें हज़ारों तलबा ने इस वक्त यहाँ पर विज़िट भी किया है। एजुकेशन के हवाले से आप देखें, एडमिशन्स के हवाले से देखें, और रोबोटिक्स और जदीद जो तालीम ई लर्निंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ से बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है। मेले में हर शोबे और हर मज़ामीन की किताबें कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। ये किताब मेला नौजवान नस्ल को बिलखुसूस किताब के करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवान नस्ल जो कि किताब से दूर हो चुकी है और किताब से उनका राब्ता जो कट चुका है, उसको जोड़ने के लिए ये बड़ी अच्छी काविश है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने किताब मेले का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखी कुतब का जायजा लिया। उन्होंने किताब मेले और जॉब फेयर के इनेकाद पर इंतजामिया की कोशिशों को भी सराहा। बुक फेयर के इनेकाद से नौजवान नस्ल में कुतब बीनी को फ़रोग हासिल होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज बुरे कार लाकर अपने अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने का पैगाम लिए शहर कायद के 9 मकामात पर कराची बिनाले का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं आयशा आफरीन से। दुनिया भर में आर्ट तब्दील हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जादू आर्ट में भी सर चढ़कर बोल रहा है और आर्टिस्ट अपने फन को टेक्नोलॉजी का टच देकर स्मार्ट अंदाज में पेश कर रहे हैं। कराची बिनाले के नाम से मुनक़िदा इस शानदार नुमाइश में 13 मुमालिक के फनकारों और हुनरमंदों ने अपने अपने फनपारे और टेक्नोलॉजी के तख्लीकी नमूने पेश किए। ये पूरा आयरन फिलिंग है एंड नीचे उन्होंने मैग्नेट्स यूज किए हैं। उससे नीचे भी मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है, तभी मैग्नेट मूव कर रहे हैं, जो कि शो कर रहा है कि इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स भी है। यहाँ पे इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है किस तरह हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू आर्ट, थ्रू पोइट्री एंड थ्रू डिज़ाइन। It means create an art sense of human. ये किचन के बोल्स हैं। मोटर्स और सेंसर्स के थ्रू हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए इन पे बोल्स अटैच कर दिए हैं, और जब आप इधर चलते हुए जाएंगे तो ये भी आपके साथ मूव होंगे। नुमाइश में पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा करके सबको हैरत ज़दा कर दिया। पाकिस्तान में नौजवानों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शरह बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन्हें टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएँ। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम की ज़ेली कमेटी का इजलास शहजादा अहमद उमर अहमद जई की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 2016 में बलूचिस्तान में सालाना बुनियादों पर होने वाली भर्तियों का जायजा लिया गया। कमेटी ने भर्तियों के मामले में मुतासरा 7 उम्मीदवारों के मसाइल 20 दिन में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने खैबर पख्तूनख्वा में तंबाकू के काश्तकारों और मकामी सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के मामले पर फौरी इक़दामात की तजवीज़ दी है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की सरबराही में होने वाले इजलास में कमेटी ने बलूचिस्तान के महकमा कस्टम्स में योमिया उजरत पर काम करने वाले बरतरफ मुलाजमीन की फहरिस्त तलब कर ली। कुछ बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेनी फौज की खैरसों खत्ते में पेशकदमी जारी है। रूसी वजारत दिफा का यह कहना है कि दरियाए डेम्प्रो के मगरबी किनारे समेत जनूबी यूक्रेन के खैरसों इलाके में फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है, ताहम ये शहर अब भी रूस का हिस्सा है। रूसी वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि यूक्रेन की पेशकदमी की वजह से इनखला का मुश्किल फैसला किया। क्रेमलिन का कहना है कि इसकी अफवाज ने इलाके दारुल-हुकूमत पर 9 माह की लड़ाई के बाद कब्जा किया था। ताहम क्रेमलिन ने कहा कि पेशवाई के बाद खित्ते की हैसियत बदल जाने के बारे में क्या सराहियां गलत है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की फोर्सेस ने 40 से ज्यादा कस्बे रूस से बागुजार करा लिए हैं। इलाके से रूसी फौज के मुकम्मल इनखला में 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि इन इलाकों में 40,000 से ज्यादा फौजी एहलकार मौजूद हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी फौज के यूक्रेन से मुकम्मल इनखला तक जंग बंद नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में शुमाली अफ्रीका और एशिया के दौरों से कबल अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यूक्रेन को एवेंजर फजाई दिफाई निज़ाम देंगे। अमेरिकी फौज के बजट से यूक्रेन को $400 मिलियन की अस्करी इमदाद दी जाएगी। सदर जो बाइडेन ने कहा कि 14 नवंबर को इंडोनेशिया में G20 इजलास के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में दोनों सदूर दो तरफा राब्ते बढ़ाने की कोशिशों पर
तबादला ख्याल करेंगे। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल में मुलव्विस 6 मुजरिमों को रिहा करने का हुक्म दिया है। राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु में तामिल अलहदगी पसंद खातून ने खुदकुश धमाके में कत्ल कर दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुजरिमों का जेल में तर्ज अमल इत्मीनान बख्श रहा, जिसके बुनियाद पर उन्हें 3 दिहाइयों बाद रिहा किया जाता है। 1984 में राजीव गांधी की वालिदा इंदिरा गांधी को भी उनके मुहाफिज ने कत्ल कर दिया था। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को दौरा करने की इजाज़त दे दी है। ईरान ने रवां माह जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के मुआयनाकारों के दौरे पर रजामंदी जाहिर की है ताकि न्यूक्लियर मुशाहिदाती टीम और उनके 35 ममालिक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के यूरेनियम के ज़रात से मुतल्लिक़ खदशात को दूर किया जा सके। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने यूरेनियम की अफज़ुर्दगी बढ़ा दी है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने गुज़श्ता सितंबर के महीने में 6.7 किलोग्राम यूरेनियम की अफज़ुर्दगी में इजाफा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि ज़िला दियामिर के सियाती इलाके बट्टो का टाप, बाबूसर टाप, नांगा पर्वत और इसके बेस कैंप में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। दरील, तांगीर, थोर, गिलगित और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश की वजह से इस्लामाबाद से गिलगित के लिए PIA की परवाजें भी मनसूख हो गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा।